guys, welcome back to our channel Sharma Ji Ka Beta Imbibe Complex Concepts. Are you excited for today's session? So let's continue our journey to learn GST. Join me for the class. Hi sir. Hi Nora, hope you are doing well. Yes sir, thanks. Good to hear. Please explain me what we learned in the previous session. Sure sir. So in the previous session we learned, as per Article 265, no tax shall be levied or collected without authority of law. That means no law, no tax. As per Section 9 of IGST, Indian territorial water shall be deemed part of the nearest state or UT. Next we learned, exclusive economic zone will be deemed other territory and other territory will be treated as separate UT. As per Section 2, subsection 103 of CGST Act, UT with assembly shall be considered state for GST. So, Delhi, Pondicherry and Jammu and Kashmir shall be deemed states. Constitution was amended through Constitution Amendment Bill 122 and Constitution Amendment Act 101 to insert Article 246A to implement GST. Constitution Amendment Act came into effect on 8 September 2016. As per Article 246A, in case of intra-state supply, Parliament and state assemblies shall have power to make law. But in case of interstate supply, Parliament shall have power to make law. Very good Nora. Now let's understand interstate supply and intrastate supply. Okay, sir. We just revised Article 246A, which gives power to Parliament and state assemblies to make law with respect to interstate supply and intrastate supply. In the previous session, I briefly introduced you to the concept of interstate supply and intrastate supply. लेकिन इस सेशन में this concept will be discussed in detail. Have a look at this diagram. आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 8 इंट्रास्टेट सप्लाई को डिफाइन करता है और सेक्शन 7 इंटरस्टेट सप्लाई को डिफाइन करता है. प्लीज नोट following 2 points which are very important to check the type of supply. First is location of supplier जिसकी short form LOS है and second is place of supply. प्लीज नोट यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर लिखा है, सप्लायर की जगह. Don't confuse it with location of supply. So Nora, can you please repeat along with me these two important points? Yes, sir. Location of supplier and place of supply. Now please have a look at this example. आप देख रहे हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई के केस में जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वह दिल्ली में है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वह भी दिल्ली में है. तो इस केस में जो सप्लाई होगी उसको हम इंट्रास्टेट सप्लाई कहेंगे. लोकेशंस मैं आपको अभी बताता हूँ. नाउ हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल. इंटरस्टेट सप्लाई के केस में यू कैन सी लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली की है और प्लेस ऑफ सप्लाई गुजरात में है. तो जो इस केस में सप्लाई होगी उसको हम इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे. नाउ प्लीज नोट, इंटरस्टेट सप्लाई के लिए जब हम लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई चेक करेंगे तो वी हैव टू मेक श्योर कि दोनों या तो सेम स्टेट में हो या सेम यूटी में हो. दोनों जब सेम यूटी या सेम स्टेट में होंगे तो हम उसको इंट्रास्टेट सप्लाई कहेंगे. इंटरस्टेट सप्लाई के लिए जब हम लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई चेक करेंगे तो वो दोनों दो डिफरेंट स्टेट में होने चाहिए या दो डिफरेंट यूटीज़ में होने चाहिए या दो डिफरेंट कंट्रीज़ में होने चाहिए. बट आप प्लीज़ नोट कि जो हमारी टैक्सेबल टेरिटरी है वो इंडिया है. तो इस केस में
जब दो डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व हो तो इधर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होना चाहिए। जब लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में होगा और प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर होगी तो उस केस को हम एक्सपोर्ट कहेंगे, क्योंकि इस केस में इंडिया से सामान बाहर जा रहा है। और जब प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में होगी और लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया से बाहर का होगा तो उस केस को हम इंपोर्ट कहेंगे, क्योंकि इस केस में बाहर से सामान इंडिया में आ रहा है। जब एक लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में हो और दोनों में से एक किसी एक यूटी में हो तो उसको भी हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। जब सप्लाई हम नॉर्मल जगह से स्पेशल इकोनॉमी जोन को करते हैं तो उसको भी हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, और वाइसा वर्सा जब स्पेशल इकोनॉमी जोन सप्लाई करता है तो उसको भी हम इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में दो टाइप के टैक्सेस लगेंगे, CGST प्लस SGST, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में होंगे। लेकिन अगर वे दोनों सेम यूटी में होंगे तब CGST और UTGST लगेगा। प्लीज नोट, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई हमेशा एक ही टैक्स लगेगा, IGST। इंट्रा स्टेट के केस में जो SGST होता है उसकी पेमेंट हम स्टेट गवर्नमेंट को करते हैं, लेकिन CGST प्लस UTGST की पेमेंट हम सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस सेशन को जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, इसलिए उसकी पेमेंट हम लोग सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को करते हैं। और जिन यूटीज़ की अपनी असेंबली है वे ऑलरेडी एक्सप्लेन कि स्टेट में कवर होते हैं। नाउ प्लीज let me discuss with you an important point. You can see in the diagram, in case of intrastate supply दो टाइप के टैक्सेस लग रहे हैं, CGST प्लस SGST या UTGST। तो इस केस में आप देख सकते हो कि कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी मिल रहा है और कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिल रहा है। नाउ हैव अ लुक एट दिस इनवॉइस। यू कैन सी इन दिस इनवॉइस कि जो GST है वो 18% से लग रहा है। फर्दर अगर आप बाइफ्रिकेशन देखोगे तो आधा आधा यानी 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है थ्रू CGST एंड SGST। तो इस केस में दोनों गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। बट इन केस ऑफ IGST वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो पेमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, तो सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। सो लॉजिकली इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि गुड्स की कंजम्पशन किसी स्टेट में होगी, सो दैट स्टेट शुड ऑल्सो गेट द शेयर। और कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ मेकर्स आर वेरी लॉजिकल, सो दे इंसर्टेड आर्टिकल 269A to take care of it. This article we will discuss shortly. Please have a look at this map. Every government want to increase the export from its country, so they give some kind of incentives or benefits for export. Also to promote and bring more business units in the country, गवर्नमेंट अपने देश में स्पेशल इकोनॉमी जोन्स बनाती है और जो बिजनेस वहाँ पर अपनी यूनिट्स लगाते हैं उनको कुछ गवर्नमेंट्स बेनिफिट्स और इंसेंटिव देती है। In this map, kindly have a look at the point number 2. I have considered it special economy zone. In the previous session, I discussed that up to 200 nautical miles from the baseline, we considered part of India. Look at the point number 1 in the map. आफ्टर 200 माइल्स इट्स कंसिडर्ड हाई सीज। इसका मतलब होता है अगर कोई सामान इंडिया से जाता है और 200 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस कर देता है तो उसको हम एक्सपोर्ट कंसिडर करते हैं। While discussing interstate supply, I discussed in case supply is between two countries or to or by SCZ, then such supplies shall be treated as interstate supply. But एक्सपोर्ट एंड SCZ को बेनिफिट देने के लिए लॉ मेकर्स ने IGST एक्ट में सेक्शन 16 को इंसर्ट किया, एंड एज पर दिस सेक्शन जब एक्सपोर्ट होगा या SCZ को सप्लाई होगा तो इसको जीरो रेट सप्लाई कहेंगे। इसका मतलब है इन दोनों केसेस में जीरो रेट पर ड्यूटी लगेगी। ना लुक एट द मैप। मैप में आप देखो यहाँ पर
केरला से और मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट हो रहा है और बिहार से SCZ को सामान की सप्लाई हो रही है। These cases shall be considered zero rated supply. Now have a look here. जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट कहता है कि जब एक्सपोर्ट होगा गुड्स और सर्विसेज का तो उसको हम जीरो रेटेड सप्लाई कहेंगे, या जब सप्लाई गुड्स और सर्विसेज की या बोथ की स्पेशल इकोनॉमी जोन को होगी तो उसको भी हम जीरो रेटेड सप्लाई कहेंगे। नोरा, do you think the following three terms are same: zero rated supply, nil rated supply and exempted supply? I don't know, sir. No problem. Let's keep this pending. We can discuss in later sessions. But for the knowledge, please note all three terms are different. Okay, sir. Sir, now interstate, intra-state and zero-rated supplies are clear to me. Excellent, Nora. It's time to meet Article 269A and also Article 270. Okay, sir. नोरा, अभी जब हम इंटर स्टेट सप्लाई को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया कि उस केस में सिर्फ एक टैक्स लगता है IGST, और IGST के टैक्स की सारी पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। तब हमारे लॉ मेकर्स ने आर्टिकल 269A को इंसर्ट किया और ये मेक श्योर किया कि उसमें से कुछ पैसा हमारे स्टेट्स को भी मिले। नाउ हैव अ लुक एट दिस। इस केस में यू कैन सी लोकेशन ऑफ सप्लायर बिहार में है और प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी में है। तो ये जो सप्लाई होगी इसको हम इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे और इंटर स्टेट सप्लाई में IGST लगेगा और IGST को लेवी एंड कलेक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। पर अब यहाँ पे 269A पिक्चर में आएगा। 269A कहता है कि जो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी IGST का, उसको स्टेट और यूनियन के बीच में बांटेगी। कैसे बांटेगी? जैसा पार्लियामेंट लॉ बना के बताएगा। और पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाएगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। दिस गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज अ न्यू टर्म टू यू। इसको हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये कैसे फंक्शन करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Yes, sir. Article 270. It's a very interesting article. Article 270 says all the taxes and duties referred in Union List 1 shall be distributed between the Union and State government like income tax and custom duty, जिसकी पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। those taxes collected amount shall be distributed between Union and State. Now please note here, आर्टिकल 270 को GST के आने के बाद अमेंड किया गया और इसमें कुछ चीज़ें ऐड करी गई, जैसे CGST shall also be distributed between the union and state. IGST apportioned to union shall also be distributed between the union and state. Here look the beauty of law. अभी हमने आर्टिकल 269A पढ़ा था। 269A ने कहा था कि जो IGST है उसको दो हिस्सों में बांटेंगे, एक हिस्सा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, दूसरा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। आर्टिकल 270 कहता है जो हिस्सा IGST का सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है उसको भी फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट के साथ बांटना पड़ेगा। और जब हमने पढ़ा था इंट्रा स्टेट सेल है उसमें दो टैक्सेस लगते थे, या तो UTGST प्लस CGST या SGST प्लस CGST। तो उस केस में जो SGST का पैसा है वह तो स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है और CGST का पैसा ये पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। जो जो CGST का पैसा है उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्दर स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नाउ हैव अ लुक एट दिस चार्ट। ये चार्ट ना आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर देगा। आप यहाँ पे देखो, मैंने टैक्सेस मेंशन किए हैं, यहाँ पे किसको पेमेंट होगी वो मेंशन किया है और इसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि नहीं होगी ये मेंशन किया है।
जो इनकम टैक्स होता है वी नो कि ये यूनियन लिस्ट 1 में मेंशन होता है, तो इसकी पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो CGST है उसकी पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, तो इस पैसे को भी उसको स्टेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। SGST है, इसकी पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट को होती है, तो इसका कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। UTGST है, ये यूनियन टेरिटरीज के बिहार पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, तो इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन जो IGST है उसमें जो पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नाउ हैव अ लुक हियर। जो IGST है उसमें से कुछ पोर्शन एज पर आर्टिकल 269A सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और कुछ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। जो पोर्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है तो आर्टिकल 270 कहता है उस पोर्शन को भी हम फर्दर बांटेंगे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। आई होप इट्स क्लियर टू यू। Yes, sir. वेरी गुड। Nora, let's practice some questions related to intrastate supplies and intrastate supply. हम इस चार्ट को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि जो नेचर ऑफ सप्लाई है वो कौन सा है और उसके ऊपर टैक्स कौन सा लगेगा। यू कैन सी थ्री थिंग्स हियर: लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ एक्चुअल सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हमको कौन सी दो चीज़ें कंसीडर करनी है नेचर ऑफ सप्लाई को डिसाइड करने के लिए? सर हमें लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई को देखना होगा। ओके, गुड। सो लेट्स कवर लोकेशन ऑफ एक्चुअल सप्लाई। ओके सर। Now see, location of supplier is Rajasthan and place of supply is Rajasthan. तो कौन सी ड्यूटी लगेगी और कौन से टैक्सेस होंगे इस पे? इसका नेचर होगा इंट्रा स्टेट, सो इसमें SGST और CGST लगेगा। वेरी गुड। ओके, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली होगा और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली होगा तब क्या होगा? तब भी ये इंट्रा स्टेट होगा और इसमें भी CGST प्लस SGST लगेगा। बट दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है। हाँ, बट इसके पास अपनी असेंबली है, सो इसमें SGST ही लगेगा। ओके, वेरी गुड। ओके, थर्ड क्वेश्चन। जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो राजस्थान का है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है यूपी में है, तब? तो ये इंटर स्टेट होगा और इसमें IGST लगेगा। गुड। ओके, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर लद्दाख और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी लद्दाख होगा, तब? तो ये इंट्रा स्टेट और इसमें CGST प्लस UTGST लगेगा क्योंकि लद्दाख UT है। गुड। ओके, अगेन वी आर हैविंग लद्दाख, सो लेट्स लीव इट, क्योंकि शायद सेम ही होगा, राइट, और डिफरेंट होगा। सेम ही होगा सर। गुड। ओके, नाउ लोकेशन ऑफ सप्लायर JNK है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी JNK है, तब कौन सी ड्यूटी लगेगी? सर इसका नेचर है इंट्रा स्टेट और इसमें CGST और SGST लगेगा। ओके, बट JNK तो शायद यूटी है, राइट? यस सर, बट उसके पास अपनी असेंबली है। एक्चुअली 6 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर इज कन्वर्टेड टू UT। जम्मू और कश्मीर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। बोथ आर UTs, but since JK had its own assembly, so it is considered as state. वेरी गुड। नाउ हैव अ लुक हियर। इस केस में जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो हिमाचल है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी हिमाचल है, लेकिन यहाँ पे जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो SCZ में है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में सर इंट्रा स्टेट लगेगा और कोई GST नहीं लगेगा, वाई? क्योंकि यहाँ ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे GST नहीं लगता है। GST नहीं लगता है या जीरो रेटेड होता है? जीरो रेटेड होता है, इसलिए GST नहीं लगेगा। बट यू हैव टू से ऑलवेज जीरो रेटेड। ओके, GST नहीं लगेगा, इट कैन बी एग्जम्पशन ऑल्सो। ओ ओके सर, नोटेड। ओके, नाउ जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो यूपी में है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो स्पेन में है, तब क्या नेचर होगा और क्या ड्यूटी लगेगी? सर ये भी ज़ीरो रेट होगा, और इसमें भी नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्सपोर्ट है। बट इसका नेचर क्या होगा? ये इंट्रा है, इंटर है?
ये इंटर है सर, इंटर स्टेट। गुड। एज बी डिस्कस्ड कि जो एक्सपोर्ट होता है उसका नेचर तो इंटर स्टेट होता है, लेकिन उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता उसको, क्योंकि जीरो रेटेड होता है, राइट। यस सर। नाउ हैव अ लुक हियर। जब प्लेस ऑफ सप्लायर यूएस में है और सप्लाई गुजरात में हो रही है, तब कैसी ड्यूटी लगेगी? सर इसमें टैक्स तो आईजीएसटी लगेगा और ये इंटर स्टेट कहलाएगा। ओके, गुड, वेरी गुड नोरा। I guess the concept of interstate and intrastate supplies are very clear to you now. यस सर। Nora, now it's time to revise what we discussed during this session. इस सेशन में सबसे पहले हमने टाइप ऑफ सप्लाईज की बात करी थी। पहली सप्लाई इंट्रास्टेट सप्लाई थी, दूसरी इंटरस्टेट सप्लाई थी। नाउ हैव अ लुक। हमने सबसे पहले इंट्रास्टेट सप्लाई की बात करी थी। इंट्रास्टेट सप्लाई को सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट डिफाइन करता है। नेचर ऑफ सप्लाई देखने के लिए दो चीज़ें चेक करनी बहुत ज़रूरी हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम यूटी या सेम स्टेट में हो तो हम उसको इंट्रास्टेट सप्लाई मानेंगे। इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हो तो सी जी एस टी प्लस एस जी एस टी लगेगा। बट अगर सेम यूटी में हो तब सी जी एस टी प्लस यू टी जी एस टी लगेगा। प्लीज़ नोट कि सी जी एस टी एंड यू टी जी एस टी की पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, बट एस जी एस टी की पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट को होती है। दूसरा हमने डिस्कस किया था इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई में भी हम लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई को चेक करेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट हो तो उसको हम इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे। इंटरस्टेट सप्लाई के केस में सिर्फ एक ड्यूटी चार्ज होती है जिसको हम आईजीएसटी कहते हैं, और इसकी पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है। कैन यू टेल मी कि जो सी जी एस टी, यू टी जी एस टी, आई जी एस टी, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? यस सर। एसजीएसटी मीन्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी मीन्स यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर एसजीएसटी एक्ट को स्टेट असेंबलीज बनाती हैं और आईजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी को पार्लियामेंट बनाती है। वेरी गुड नोरा। नाउ हैव अ लुक एट आर्टिकल 269A। 269A कहता है कि आईजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसको वो दो हिस्सों में बांटेगी, एक हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और एक हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। फर्दर वी डिस्कस्ड आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 कहता है कि यूनियन लिस्ट वन जो 7 शेड्यूल का है उसमें जितनी भी एंट्रीज मेंशन है उन एंट्रीज पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई टैक्स लेवी करती है और कलेक्ट करती है तो उसे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट के साथ बांटना पड़ेगा। तो प्लीज़ नोट कि जो आईजीएसटी का पोर्शन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आएगा ये फर्दर दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ऐसे ही जो सीजीएसटी है ये भी दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और एक स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। यस सर। नाउ इट्स टाइम टू द क्वेश्चन विच वी आस्क्ड ड्यूरिंग द लास्ट सेशन। हमने लास्ट सेशन में पूछा था व्हेन जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन जे एंड के यू आर हैविंग टू ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 इज द डेट जब जीएसटी इंडिया में लागू हुआ था। सेकेंड डेट यू आर हैविंग 6 अगस्त 2019। 6 अगस्त 2019 इज द डेट जब आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया गया था और जो जम्मू एंड कश्मीर है वो इंडिया का पूरी तरह से हिस्सा बन गया था। उससे पहले यू मस्ट नो कि आर्टिकल 370 को स्क्रैप करने से पहले जो लॉज होते थे कई बार वो जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं होते थे। बट नाउ यू टेल मी कि इन दोनों में से किस डेट को जीएसटी जेएनके में लगा था? Sir, neither of the dates are correct. It was implemented on 8th July 2017. वेरी गुड नोरा। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि आप इतना ढूंढ के लाओगे। आई थॉट यू विल गेट कंफ्यूज विद दिस टू डेट्स। Thank you, sir. गुड। सो 8 जुलाई 2017 को जीएसटी जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट हुआ था।
Yes, sir. I hope you enjoyed learning today. Yes, sir. It was really fun and easy to understand. Nora, a small homework for the next session. Please try to find out when and in which country GST was first introduced. Sure, sir. See you in the next session. Hey guys, do you know this answer? If yes, kindly write down in the comment section below. I enjoyed the session a lot. What about you? If you still have any doubt, any suggestion or feedback, please comment down below. We shall get back to you. Please subscribe and hit the bell icon to get the notification of our new video. And don't forget to like, share and subscribe. See you soon. Bye bye.